جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا آدمی ہمارے ساتھ کریں جو قاری ہو، مبلغ ہو، شریعت کو خوب جانتا ہو، اچھی تقریر کر سکتا ہو، دشمنوں کی زیادتیوں سے نہ گھبرائے نہ ڈرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں کل صبح تمہارے پاس مصعب بن عمیر کو بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ یثرب جا کر تبلیغ کریں گے۔ رافع نے کہا، بہت خوب، اب دعا فرمائیے کہ اللہ یثرب والوں کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور یہ مجلس برخاست ہوئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کے 12 مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک ہفتے کے بعد یہ قافلہ یثرب یعنی مدینے میں داخل ہوا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہر گئے۔ انہوں نے ایک دن کے لیے بھی آرام نہ کیا اور دوسرے دن ہی سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ یثرب یعنی مدینے کی آبادی قبیلہ وار تھی۔ مصعب بے دھڑک ہر محلے میں جا جا کر قبیلے کے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ اوش کی شاخوں میں قبیلہ بنو الاحمس اور قبیلہ بنو الجفر بہت مشہور اور طاقتور قبیلے تھے۔ قبیلہ بنو الجفر کے سردار اشید بن حزیر اور قبیلہ بنو الاحمس کے سردار سعد بن معاذ کو یثرب کے تمام قبیلوں نے اپنا سردار مان لیا تھا۔ یثرب کے وہی حاکم تھے۔ اشید بن حزیر اور سعد بن معاذ کو مصعب کے مکہ سے مدینے میں آنے اور تبلیغ اسلام کرنے کی اطلاع تھی۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ مصعب کی کوششوں سے نیا مذہب بہت ترقی کر رہا ہے اور لوگ جھنڈ کے جھنڈ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور حکم دے دیا کہ سارے محلے میں مصعب یا کوئی اور مسلمان نہ آنے پائے، اور اگر کوئی آیا تو اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک دن مصعب اور اشد بن زرارہ سعد بن معاذ کے محلے میں جا پہنچے۔ اس محلے میں ایک بڑا کنواں تھا۔ دونوں وہیں جا کر بیٹھے اور مصعب لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے۔ سعد بن معاذ کو یہ معلوم ہوا تو انہیں سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے اشید کو بلا کر کہا، دیکھو اشید، مصعب و اشد کی دریلی بہت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے یثرب یعنی مدینے کے تمام لوگوں کو بہکا کر اپنے مذہب میں داخل کر لیا ہے اور اب ہمارے محلے والوں کو بہکانے آئے ہیں۔ یہ دونوں ایسے ہیں کہ میرے انتہائی حکم کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ کیا ہمیں اس جلت اور ان دونوں کی اس دریلی کو برداشت کر لینا چاہیے؟ کبھی نہ کرنا چاہیے۔ اشید نے کہا، یہ تو بڑی جلت کی بات ہے۔ تم سچ کہتے ہو اشید۔ دیکھو، اشد میرا خلیرہ بھائی ہے، اس لیے میں اس کا لحاظ کرتا ہوں۔ تم جاؤ اور دونوں کو کنویں پر سے اٹھا دو اور کہہ دو کہ ہمارے محلے میں کبھی نہ آئیں۔ اگر پھر سے آئے تو ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ اشید اچھا کہہ کر اٹھے اور تلوار لے کر کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ مصعب کچھ تقریر کر رہے تھے اور لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ یہ لوگ اسی محلے کے تھے۔ اشید ان پر بہت بگڑے۔ دیکھتے دیکھتے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک آدمی بھی وہاں کھڑا نہ رہا، صرف مصعب اور اشد ہی وہاں رہ گئے۔ اشد بڑھ کر دونوں کے پاس پہنچے۔ چونکہ وہ غصے میں تھے اس لیے قریب پہنچتے ہی کڑک کر بولے، مصعب، تم نے یثرب میں آ کر ایک بھاری فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ سارے محلے میں تو بہکاتے ہی رہتے ہو، اب ہمارے محلے میں بھی آ گئے ہو اور یہاں بھی فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے سردار سعد بن معاذ نے اس محلے میں تمہارے داخلے پر روک لگا دی ہے؟ مصعب، اس بار تو ہم معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر اب آیا تو سمجھ لے تیرا سر اڑا دیا جائے گا۔ مصعب بڑے اطمینان سے اشید کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہماری کس بات پر ناخوش ہو کر ہمیں محلے سے نکال دینا چاہتے ہیں اشید؟ اشید کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بولا، کس بات پر نامعقول آدمی؟ کیا تجھے خبر نہیں جانتا تو سن کہ تو لوگوں کو بہکا کر مسلمان کر لیتا ہے، اس لیے اٹھ اور ہمارے محلے سے فوراً نکل جا، اور اشد تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مصعب نے کہا، ہمیں تمہاری بات ماننے میں کوئی عذر نہیں ہے، لیکن کیا آپ ہم دونوں کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے 2 باتیں سن لیں گے؟ اشید نے کہا، کیسی 2 باتیں؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، جو اوروں سے کرتا ہوں وہیں آپ سے بھی کہوں گا، بس ٹھنڈے دل و دماغ سے اسے سن بھر لیجئے۔ مصعب نے کہا،
उशैद कुछ नरम पड़े और तलवार का सहारा लेकर मुसाब के पास बैठ गए। बोले, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? मुसाब की तो मांगी मुराद भर आई थी। उन्होंने नरम लहजे में कहना शुरू किया, ऐ कबीला बनु जफर के सरदार, मक्का में अल्लाह की ओर से एक नबी भेजे गए हैं। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। उन पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल फरमाई है जिसका नाम कुरान है। ऐ मेरे भाई, मैं और सारे मक्का वाले तुम्हारी तरह बुत की पूजा करते थे, उसी को माबूद मानते थे। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और समझाया कि अपने हाथों से तरासे हुए बुत खुदा नहीं हो सकते। ये तो बोल नहीं सकते, हरकत भी नहीं कर सकते। खुदा तो वही हो सकता है जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया हो, जो सब कुछ जानता हो, देखता हो, सबको रोजी देता हो, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत हो। फिर मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयतें पढ़ी। उशैद चुपचाप बैठे सुनते रहे। आयतों का असर उनके दिल पर होता रहा, यहाँ तक कि वो कांप उठे। मुसअब के खामोश होते ही बोले, मुसअब, कसम है उन माबूदों की जिन्हें मैं पूजता हूँ, ये कलाम इंसान का कलाम नहीं है। मैं उस खुदा पर जिसका ये कलाम है ईमान लाया। मुसअब, अब मुझे भी मुसलमान कर लीजिए। मुसअब ने उन्हें फ़ौरन कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। फिर उशैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, एक आदमी और है, अगर वो किसी तरह से भी ईमान ले आए तो सारा यसरब मुसलमान हो जाएगा। मुसअब ने पूछा, वो कौन है? उशैद ने कहा, साद बिन मुआज, यसरब का मालिक। अगर मैं उनके पास पहुंच जाऊं या किसी तरह से वो मेरे पास आ जाएं तो मुमकिन है कि वो भी मुसलमान हो जाएंगे। मुसअब ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है कि कलाम इलाही की एक आयत सुनने के बाद वो ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैं जाकर अभी उन्हें आपके पास भेजता हूँ। तुम जिस तरह भी मुमकिन हो सके उन्हें कलाम पाक सुना देना। यकीन है कि वो भी मुसलमान हो जाएंगे। मुनासिब है आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए। मुसअब ने कहा। उशैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साद के पास पहुँचे। देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों उशैद मुसअब और असद को निकाल आए? नहीं, उशैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वे नहीं गए। साद को गुस्सा आ गया, तलवार हाथ में ली और ये कहते हुए चले कि उनकी इतनी हिम्मत। कुएं के पास पहुंचते ही मुसअब और असद को मुखातब करके सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इतनी जुर्रत हो गई है कि मेरे मोहल्ले में आकर मेरे कबीले के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। देखो, अभी तुम सबको इस घमंड की सजा देता हूँ। ये कहते ही वो मुसअब और असद पर झपटे। दोनों बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, जैसे कुछ सुन ही ना रहे हों। साद को और गुस्सा आ गया, तलवार म्यान से खींच ली और चीखे, जिसे मौत आ गई हो उसे कौन बचा सकता है? होशियार हो जाओ। मुसअब ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यसरब के मालिक, आप हम दोनों पर इतने खफा क्यों हो रहे हैं? उसने गजबनाक होकर कहा, क्यों खफा हो रहा हूँ? अभी मालूम हो जाएगा। बदबख्त इंसान मेरे कबीले वालों को मुसलमान बना रहा है और कहता है मैं खफा क्यों हो रहा हूँ। तुम दोनों फौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी तलवार से सर कलम कर दूंगा। मुसअब बोले, ऐ कौम के सरदार, आप खफा ना हो, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, मगर एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? साद ने पूछा। आप जरा मेरे पास बैठ जाएं, फिर जो मैं कहूँ ठंडे दिल से सुने। मुसअब ने कहा। साद मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठ गए। मुसअब ने बड़ी नर्म अंदाज में कहा, ऐ मेरे भाई, आप मुझसे और भाई अशद से इसलिए नाराज हैं कि हम सब मुसलमान हो गए हैं और दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत दे रहे हैं। कभी आपने सुना कि हम क्या कहते हैं और किस बात की तबलीग करते हैं? मेरे आपके और तमाम अरबों के बाप दादा बुत परस्त थे, हम उन्हें माबूद मानते थे। लेकिन ऐ बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान, मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि खुदा वो जात है जिसने दुनिया जहान को पैदा किया है, इंसान को मिट्टी से बनाया है। सभी इंसान उसके बंदे हैं। इबादत के काबिल खुदा है वो खुदा जो मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा करता है। जो कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो उसी खुदा का है। फिर उसके बाद मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का कलाम सुनाया। साद बड़े ध्यान से अल्लाह का कलाम सुनते रहे। उनका बदन कांपने लगा था, आंखों से खौफ व हराश जाहिर हो रहा था।
चेहरे पर रौब छा गया था। उन्होंने जल्दी से कहा, उफ, कितना असरदार कलाम है, इसने तो मेरा दिल खींच लिया। मेरा कल्ब रोशन हो गया, आंखों से गुमराही के तारीक पर्दे उठ गए। मुसाब, मेरे मेहरबान मुसाब, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की है। ये कहते ही शाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुसाब ने उठकर हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। फिर शाद के कहने पर मुसाब ने साद को कलिमा पढ़ाया और मुसलमान कर लिया। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसाब को खिताब करते हुए कहा, मुसाब, अब तुम मेरे गरीब खाने पर चलो, वहीं चलकर मैं अब अपने पूरे कबीले को इस्लाम की तालीम दूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा कबीला पूरे का पूरा इस्लाम कबूल कर लेगा। मुसअब ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ उनके मकान पर आ गए। पूरा कबीला जमा कर लिया गया। साद ने बुलंद आवाज़ से लोगों से पूछा, ऐ कबीले वालों, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो? हर तरफ से आवाज़ें आईं, आप हमारे सरदार हैं। शाद ने कहा, ऐ मेरे कबीले के लोगों, तुम जानते हो कि मैं बुत परस्त था, मुझे इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत थी। मैंने ऐलान कर दिया था कि मेरे कबीले का जो आदमी मुसलमान बनेगा उसे सख्त सज़ा दूंगा। अब सुनो और गौर से सुनो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने इस्लाम को खूब अच्छी तरह समझ लिया है, उससे अच्छा कोई मज़हब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ, लेकिन हम तो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, हम कैसे इस्लाम कबूल करें? कुछ आवाज़ें आईं। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुमने ये अक्लमंदी की बात की है। तुम्हें मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताएंगे कि इस्लाम क्या है। खामोशी से तकरीर सुनो। तमाम मजमा खामोश हो गया। मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची आवाज़ से तकरीर की, इस्लाम के बारे में तफसील बताई। लोग खामोशी से सुनते रहे। जब मुसाब चुप रहे तो साद ने पूछा, अब बताओ, तुम इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो? सब ने कहा, बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह सब मुसलमान हो गए। मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यसरब में सन 12 नबवी में आए थे। 10 महीने की थोड़ी सी मुद्दत में बड़ी आबादी को मुसलमान कर लिया था। अब जब हज का ज़माना आया तो हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज के लिए बहुत से लोग मक्का चलने को तैयार हो गए। इनकी कुल तादाद 74 थी, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें। और हमारे चैनल पे जैस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।